very important subject for judicial services, APO and other legal fields exam, because this subject is concerned to the procedure, how to lodge the FIR, how to make the complaint before the magistrate, what procedure adopted by the in charge officer of the police station after lodging the FIR, what procedure adopted by the magistrate after the making the complaint before the magistrate, and how to frame the charge, how to take the cognizance, then how to record the evidence of the prosecution and the complainant side, how to record the mandatory examination of the accused under section 313 CRPC, and after then if accused is interested to produce the defense evidence, then what would be the procedure of the recording of the statement. If the accused himself produced as a witness of defense, or the any other witnesses produced by the accused in defense, and how to heard the arguments in criminal cases, and ultimately how to pass the judgment in a criminal case. And there are so many types of the trial, like a session trial, warrant trial by magistrate, summon trial by magistrate, summary trial, and in every trial there is a separate procedure. How to follow and observe that procedure, mandatory procedure prescribed under the CRPC, like chapter 18, chapter 19, chapter 20, chapter 21 of the CRPC. The chapter 18 of CRPC is concerned to the entire procedure of the session trial. Chapter 19 of CRPC is concerned to the entire procedure of the warrant trial by magistrate. Chapter 20 of CRPC is concerned to the procedure of the summon trial by the magistrate, and the chapter 21 is concerned to the procedure of summary trial. Then there is a specific provision to taking the evidence, like the chapter 23 of the CRPC is concerned to the taking of evidence. What would be the manner of the recording of the evidence in summon cases or inquiry? What would be the manner of recording of the evidence in warrant trial by the magistrate, and what would be the manner of the recording of evidence in session trial? Section 274, 275, 276 CRPC is concerned to the this specific points. And if any witness, his evidence is material and substantial in a criminal case, but who not appear before the court by reason of the infirmity or the any disease, etc., and who is the member of the public service and hold the any office, cannot be compelled to appear before the court, like the president, governor of the every state, etc. Then whether court has the power to issue the commissions for recording of the such witness, such type of the provision also concerned and provided under the criminal procedure code. And if any person is aggrieved from the judgment and decision given by the trial court in a criminal case, what further remedy is available to that aggrieved person, like a remedy of appeal, remedy of revision, remedy of reference, and ultimately appeal to the Supreme Court. All these remedies and remedies in form of the 482 under the criminal procedure code, to inherent power to make the criminal miscellaneous yes, to making the miscellaneous criminal application before the Honorable High Court under section 482, to pass the certain orders and remedies which are not expressly provided under the criminal procedure code, whether bail should be granted or not in a criminal cases, and what would be the manner of the taking and verification of the bonds and the bail bonds, etc. All these provisions concern to the CRPC. Whether the police has power to arrest any person without warrant or with warrant, etc. Such type of the provision also provided under the CRPC, like section 41, 42, 43, 44, etc. Whether a private person has right to arrest the specific persons, like a proclaimed offender or the
person who committed the cognizable and non-bailable offence in the presence of the private person, where the magistrate has power to arrest himself, the any person. These provision also provided under the CRPC section 43 and 44. How to compel a person to appear before the criminal court for the purpose of the giving oral evidence and for the purpose of the production of the documents or the any things or the material objects. That procedure, that compelling procedure is also provided under the criminal procedure code to issue the summon, to issue the arrest warrant, to make the proclamation of the abscond, to pass the order of the attachment of the concerned absconded person, and also to issue the summons and pass the order in writing for the production of the documents or the thing, also issue the search warrant in the certain circumstances which is specified under section 93, 94, 95, 97, etc. Read with the section 100, 101, etc. of CRPC. If a person who is legally bound to maintain his or her parents, wife, and minor sons, daughters, and a major sons and daughter, but they are not capable to maintain herself or himself by the reason of the infirmity or the any abnormal injuries, etc. Under those circumstances, whether a criminal court or the magistrate of the first class having the power to pass the order of the maintenance or the interim maintenance in favor of the parents, wife, and children, that type of the provision also provided under section 125 of CRPC and another provision 126, 127, 128, etc., which are in connection with the 125 of CRPC. Whether the executive magistrate has power, the preventive power, like to require the execute the bond for the keeping peace or the maintaining good behavior, and disperse the unlawful assemblies and remove the public nuisance, etc. And in urgent cases of the nuisance, if there is a dispute as to the immovable property, to the land, water, and the boundaries thereto, etc., whether the executive magistrates have power to prevent the such breach of the peace and to require from the such persons for executing the bond for the keeping peace or the maintaining good behavior for the public tranquility or to maintaining the public peace, etc. Such type of the provision also provided under the criminal procedure code. If any information is given to the in charge officer of the police station in respect of the cognizable offence, whether concerned SHO or the in charge officer of the police station is bound to record the and lodge or register the FIR or not, etc. There are so many interpretation connected with the section 154 of CRPC, the Lalita Kumari versus State of UP, and a series of judgments of the Honorable Supreme Court upon this point. Cases where the any information is given to the in charge officer of the police station, not record the FIR, after then he approached the SP of the district, but concerned SP did not take the actions in respect of that information, and he made the complaint before the competent magistrate. What are the prerequisites for the making complaint and maintainability of the complaints? The Priyanka Srivastava versus State of UP 2015 Supreme Court is the very leading judgments upon that point. Arnesh Kumar versus State of Bihar 2014 Supreme Court is the very leading judgment in respect of the procedure of arrest. And in addition to these provisions, if the criminal courts, what type of the criminal courts, kinds of the criminal courts, and what punishment awarded or inflicted by the criminal courts, High Court is authorized to pass which type of the punishment or sentence, court of session, then judicial magistrate first class, judicial magistrate second class, metropolitan magistrates, CJM, CMM, the section 28, 29, etc. CRPC is concerned to the power of the awarding the punishment by the high courts and the subordinate criminal courts.
whether public is bound to assist the police and magistrates and bound to the gives the certain information etc. Such type of the provision also provided under the criminal procedure code. And that is scheme and what are the what irregularities vitiate the proceedings, what irregularities or which irregularities does not vitiate the proceedings, what would be the period of limitation to filing the complaint and making the FIR in respect of the certain offences, the relation concerned to the such points, also the express provision under the criminal procedure code, the chapter 36, chapter 35 of the CRPC. तो इस तरीके से आप देखेंगे तो दंड प्रक्रिया संहिता है वो बहुत अपने आप में एक वाइड, बहुत विस्तृत है वो विषय है, और प्रैक्टिकली भी आप एज ए जुडिशियल ऑफिसर वर्क करेंगे या एडवोकेट के रूप में कार्य करेंगे तो भी इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और वैसे भी इस विषय की आपको है वो अच्छी जानकारी है तो आप अच्छे अधिवक्ता साबित हो सकते हैं, अच्छे जज भी है वो साबित हो सकते हैं, और ज्ञान प्राप्ति और एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए तो ये बहुत ही अब वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। आईपीसी और एविडेंस से कंपैरिजन इसका है वो देखा जाए, पिछले सालों के आप मेंस के पेपर्स वगैरह है वो देखेंगे उठा के तो सीआरपीसी का वेटेज आईपीसी और एविडेंस से ज़्यादा है। क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ मार्क्स में आप देखेंगे अंकों की संख्या की काउंटिंग करेंगे तो प्रीलिम्स का आपका पेपर है उसमें भी वेटेज ज़्यादा है और मेंस के पेपर में भी सीआरपीसी का वो वेटेज ज़्यादा है। दंड प्रक्रिया संहिता जो है जैसा इसके नाम से विदित है कि ये प्रक्रियात्मक विधि है। कैसी है ये प्रोसीजरल लॉ है, नॉट अ सब्सटेंटिव लॉ, सार्वजनिक विधि नहीं है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द लॉ, सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजर लॉ। द लॉ which creates or determines the rights and obligations of the parties are called the substantive law. For example, the Hindu Muslim law, law of tort, law of contracts, even Indian penal codes are the substantive laws. And the laws which ensure the procedure of the enforcement of the rights and obligation created by the substantive law called the procedure law, like the criminal procedure code, civil procedure code, law of limitations, even specific relief act, court fees acts, Indian evidence act, all are the example of the procedure law. दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर जैसा अपन ने इंग्लिश में अभी डिस्कशन में देखी कि बहुत सारे प्रावधान है इसके अंदर। कोई भी आपराधिक मामला है, क्रिमिनल लॉ दो तरीके से मोशन में आ सकती है, आपराधिक विधि को दो तरीके से गतिमान किया जा सकता है। एक प्रथम सूचना प्रतिवेदन है वो दर्ज करवा के, और दूसरा परिवाद पेश करके। दोनों की प्रक्रिया दे रखी है इस विधि के अंतर्गत। प्रथम सूचना प्रतिवेदन जो है, जो पुलिस थाने को या थाना अधिकारी को है वो दिया जाता है धारा 154 सीआरपीसी के अंदर। उस इतला देने के बाद और उस एफआईआर के दर्ज होने के बाद की है वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक प्रक्रिया रहेगी, ये भी इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दे रखी है। और यदि परिवाद है वो पेश होता है मजिस्ट्रेट के सामने तो मजिस्ट्रेट क्या कार्रवाई करेगा उसमें, क्या 156(3) में उसको है वो परिवाद को इन्वेस्टिगेशन के लिए वो भेज सकता है कंसर्न मजिस्ट्रेट, या उसके अंदर 200 और 202 के है वो स्टेटमेंट ऐड सकता है रिकॉर्ड करके और उसमें प्रोसीड कर सकता है। दोनों प्रकार की प्रक्रिया इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर दे रखी है। ट्रायल जो है विचारण, जिसके अंदर अल्टीमेटली या तो कन्विक्शन या एक्विटल का ऑर्डर होता है, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि का आदेश होता है, उस ट्रायल का भी सेशन विचारण, मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट मामलों का विचारण, मजिस्ट्रेट के द्वारा समन मामलों का विचारण और संक्षिप्त विचारण, ये चार प्रकार के विचारण की विशेष प्रक्रिया है वो इस दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर अध्याय 18, अध्याय 19, अध्याय 20 और अध्याय 21 में दे रखा है। संज्ञान कैसे लिया जाए, संज्ञान लेने की क्या पूर्व अपेक्षित शर्तें हैं, आप चैप्टर 14 पढ़ेंगे सीआरपीसी का, तो एंटायर इस कॉग्निजेंस से रिलेटेड है। आरोप कैसे है वो विरचित किया जाए क्रिमिनल कोड के द्वारा, और आरोप की क्या अंतर्वस्तु होगी, आरोप में कोई परिवर्तन या परिवर्धन हो सकता है, आरोप में कोई गलती है तो उसका क्या प्रभाव होगा। चैप्टर 17 आप देखेंगे सीआरपीसी का, वो सारा आपके इस चार्ज या आरोप से है वो रिलेटेड है। आपराधिक मामलों के अंदर अभियुक्त को भी और साक्षी को भी कैसे बुलाया जाए कोर्ट के सामने, बुलाने का तरीका क्या रहेगा, 3-4 तरीके आपको पढ़ने को मिलेंगे चैप्टर 6 के अंदर सीआरपीसी में। सबसे पहले कोर्ट सामान्यतः उसमें क्या है, समन जारी करता है। समन भी क्या है, एक रिटर्न ऑर्डर है कोर्ट का,
दूसरे अबो पर्सन के अगेंस्ट उसको अपीयर होने के लिए हो सकता है, एविडेंस देने के लिए हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए हो सकता है। समन से भी नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका कोर्ट अपना सकता है, गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। गिरफ्तारी वारंट से भी नहीं मिल रहा है, वो गायब ही है, तो एक फरार की उद्घोषणा की जा सकती है। फरार की उद्घोषणा कर दी फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो एक और कंपेलिंग मोड अपनाया जा सकता है। लास्ट क्या, उसकी संपत्ति को कुर्क करने का ऑर्डर है वो दिया जा सकता है। तो ये सारे क्या अल्टीमेटली कंपेलिंग मोड है, ये विवश करने के मोड है कि उसकी अपीयरेंस एंश्योर हो जाए कोर्ट में, उसकी जो उपस्थिति है वो क्रिमिनल कोर्ट जो है दंडिक न्यायालय है जिसमें उपस्थिति आवश्यक है, चाहे विटनेस के रूप में और चाहे अक्यूज के रूप में, तो उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए ये वेरियस जो मोड्स है, कई तरीके दे रखे हैं उसको है वो विवश करने के। और इसी तरीके से कोई दस्तावेज या कोई चीज या भौतिक पदार्थ है उसको भी पेश करने के लिए तरीके दे रखे हैं। उसमें सबसे पहला तरीका समन या लिखित आदेश है, और यदि उससे पेश नहीं हो पा रहा तो सर्च वारंट है। उसके बाद क्या है, तलाशी वारंट है। तलाशी वारंट है वो इशू हो सकता है, और वारंट में जिस जगह पर होने का अंदेशा होता है वहां जाके दबिश दी जाती है, और वहां यदि वो चीज़ पाई जाती है एटसेट्रा तो उसका फर्ज जब्ती है वो तैयार होता है, और मोतबीर वगैरह उनके है वो सिग्नेचर होते हैं एटसेट्रा। तो ये प्रक्रिया भी तलाशी वारंट है वो जारी करने का, समन जारी करने का, रिक्विजेशन या अध्यय अपेक्षा जो करने का, ये प्रोसीजर भी आपको इस दंड प्रक्रिया संहिता के अंदर पढ़ने को मिलेगा। पुलिस की जो प्रिवेंटिव एक्शन है, पुलिस की निवारक शक्तियां, चैप्टर 11 सीआरपीसी का, उसमें पुलिस के कुछ निवारक कृत्य दे रखे। निवारक का मतलब कुछ होने से पहले किया जाना, कोई अपराध है हो उसको उससे पहले ही है वो कुछ ऐसा एक्शन लिया जाए जिससे अपराध किया जाना रुक जाए, ऐसी कुछ प्रिवेंटिव पावर, निवारक शक्तियां जो है कुछ करने से रोकने की जो शक्तियां पुलिस को दे रखी है चैप्टर 11 के अंदर, और इसी तरीके की कुछ शक्तियां कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी दे रखी है। परिशांति बनाए रखने का बंद पत्र निष्पादित करने के कार्यपालक मजिस्ट्रेट है वो अपेक्षा कर सकता है। सदाचार बनाए रखने के लिए वो प्रतिभूति लेने की अपेक्षा कर सकता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। विधिविरुद्ध जमाव है उसको तितर बितर करने का है वो आदेश दे सकता है कार्यपालक वो मजिस्ट्रेट। उसको आर्म फोर्सेज एटसेट्रा का यूज करके भी उसको डिस्पर्स या वो तितर बितर है वो करवा सकता है। वो लोक उपताप है उसको हटाने आदि का कंडीशनल ऑर्डर भी है वो दिया जा सकता है। और यदि पब्लिक न्यूसेंस एटसेट्रा के अर्जेंट है वो केसेस है या कोविड जैसी सिचुएशन है तो सेक्शन 144 के ऑर्डर्स एटसेट्रा भी है वो किए जा सकते हैं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा। कुछ लोग जो सब्सटेंटिव लॉ के अंतर्गत माता पिता का, पत्नी का, बच्चों का भरण पोषण करने के लिए आबद्ध है, और वो यदि उनके पास पर्याप्त साधन भी है, सफिशिएंट मीन्स भी है, फिर भी वो नेग्लिजेंट बरतते हैं, उसमें वो उपेक्षा बरतते हैं, नहीं देते हैं भरण पोषण। सीआरपीसी में एक सेक्शन है 125 सीआरपीसी जिसमें प्रार्थना पत्र पेश हो सकता है प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के सामने मेंटेनेंस का है वो ऑर्डर करने के लिए। तो इस तरीके का एक स्पीडी रेमेडी या एक शीघ्र जो उपचार है ये भी है वो दे रखा है। उसके लिए सैंक्शन का प्रोविजन भी है, यदि उस आदेश की पालना नहीं होती है तो कृष्ण भगवान के जन्मस्थली के दर्शन भी हो सकते हैं उस ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं होने पर। तो ऐसा मे एक्सटेंड टू 1 मंथ, 1 महीने तक का जो है कारावास की पावर भी है वो दे रखी है 125 के सबसेक्शन है वो 3 के अंतर्गत। अभी मैं एक दिन देख रहा था कि ये कृष्ण भगवान के जो जन्मस्थली वाली बात है, जैनान व्यास यूनिवर्सिटी के जो छात्र संघ अध्यक्ष है रविंद्र सिंह जी, वो अभी एक मामले में गिरफ्तार है वो हो गए थे किसी आंदोलन वगैरह के अंदर। तो उन्होंने भी इस शब्दावली का ये यूज लिया था कि हमें कोई है वो तकलीफ नहीं है, हमारे तो दादा परदादाओं का कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था वहाँ जेल में, तो हम आराम से वो कृष्ण भगवान की जन्मस्थली है। तो इसलिए हालांकि सजा के रूप में अंदर भेजा जाता है पर फिर भी उसको अपन और अच्छा नाम क्या दे सकते हैं वहाँ है वो रहने के लिए भी। तो इसलिए ऐसे है वो लॉर्ड कृष्णा का जो बर्थ प्लेस है उसके दर्शन भी है वो हो सकते हैं। 125(3) के अंदर मजिस्ट्रेट को ऐसी पावर भी दी गई है कि उस तीर्थ स्थल की भी है वो एक आध बार है वो परिक्रमा है वो करवाई जाए। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रावधान है। और मान लो ट्रायल स्टार्ट हो गई तो उसमें विचारण प्रारंभ होने के बाद अभियोजन का साक्ष्य है वो कैसे पेश किया जाएगा, कैसे लिखबद्ध होगा। 313 सीआरपीसी के अंदर जो अभियुक्त की परीक्षा है या बयान मुलजिम है वो कैसे है वो लिखबद्ध होगा। उसके बाद यदि अभियुक्त कोई प्रतिरक्षा का साक्ष्य पेश करना चाहता है तो वो कैसे है वो लिखबद्ध किया जाएगा प्रतिरक्षा का साक्ष्य। फिर अंतिम जो बहस है वो सुनी जाएगी और उसमें क्या क्या सबमिशन या निवेदन हो सकते हैं कोर्ट के सामने,
और अल्टीमेटली कोर्ट जो है वो दोष मुक्ति या दोषी का निर्णय या आदेश करता है, उससे भी कोई अपने आप को पीड़ित मानता है, एग्रीव्ड मानता है, तो उस ऑर्डर के खिलाफ, उस निर्णय के विरुद्ध उसके पास क्या फर्दर रेमेडीज है और क्या उपचार है, वो अपील के रूप में उपचार है या पुनरीक्षण के रूप में वो उपचार है, इवन लास्ट जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर है वो अपील का जो उपचार है, या रेफरेंस भी कोई लीगल पॉइंट इन्वॉल्व है तो उसमें रिक्वेस्ट है वो की जा सकती है कंसर्न ट्रायल कोर्ट से कि इस मैटर को है वो रेफरेंस किया जाए हाई कोर्ट को है वो इसकी वैलिडिटी को डिसाइड करने के लिए। तो ये सारी जो बातें और इंक्लूडिंग 482 के अंतर्गत भी लाइक एफआईआर को क्वेश करने के लिए या कंप्लेंट को क्वेश करने के लिए जो है कोई कार्रवाई की जाए या एप्लीकेशन है वो पेश की जाए, आपराधिक विविध प्रार्थना पत्र। तो ये सारे जो अतिरिक्त उपचार है ये भी आपके पास है वो सीआरपीसी में दंड प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड, किसी आपराधिक मामले से रिलेटेड जो है ये सारे अतिरिक्त उपचार भी है वो दंड प्रक्रिया संहिता में ही दे रखे। किसी मामले के अंदर मान लो अभियुक्त को किसी को पेश किया जाए, उसको जमानत दी जाए या नहीं दी जाए, अपराध की प्रकृति क्या है, वो जमानती भी है या नहीं है, या वो संज्ञेय है या असंज्ञेय है, और यदि वो अजमानती है तो उसमें डिस्क्रिप्शन के अंदर उसको बेल ग्रांट की जाए, जमानत दी जाए या नहीं दी जाए, तो इससे रिलेटेड प्रोविजन भी, एंटिसिपेटरी बेल भी दी जाए या नहीं, तो ये प्रावधान भी आपको दंड प्रक्रिया संहिता का जो आपका चैप्टर 33 है सेक्शन 436 से 450 धारा 436 से लेकर और 450 तक उसमें डिटेल प्रोविजन आप दे रखे हैं। क्या पुलिस किसी व्यक्ति को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, कोर्ट या मजिस्ट्रेट के वारंट के बिना भी? यस, ऐसी भी कुछ परिस्थितियां हैं, पुलिस को सेक्शन 41 सीआरपीसी के अंदर बिना वारंट की गिरफ्तारी की भी शक्ति दे रखी है। क्या एक प्राइवेट व्यक्ति जो पुलिस का सदस्य है वो नहीं, क्या वो भी गिरफ्तार कर सकता है किसी को? यस, सीआरपीसी उसको भी पावर देते हैं, बशर्ते कि फिजिकल पावर हो, उसमें गिरफ्तार करने की शक्ति हो और पुलिस तक ले जाने की हिम्मत हो उसकी, तो वो गिरफ्तार कर सकता है। ऐसा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 43 में उसको 2 प्रकार की परिस्थितियां दे रखी है, जब पढ़ेंगे 43 तब देखेंगे इसको। क्या मजिस्ट्रेट भी गिरफ्तार कर सकता है? हाँ, ऐसा भी प्रावधान है दंड प्रक्रिया संहिता में, मजिस्ट्रेट को भी एम्पावर किया गया। हालांकि ये काम सारे पुलिस के और दूसरे उसके असिस्टिंग उनके, मजिस्ट्रेट का काम जो है वो डिस्प्यूट को डिसाइड करने का, जो मैटर उसके सामने, जो कॉज उसके सामने है उसको डिसाइड करने का या एडजुडिकेट करने की पावर है। बट सीआरपीसी एक्सेप्शनली उसको भी पावर देता है, उसको भी ऐसी शक्ति देता है कुछ परिस्थितियों के अंदर कि यदि उसकी प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ही कैन अरेस्ट, वो है वो गिरफ्तार उस व्यक्ति को कर सकता है जिसने उसकी उपस्थिति में इस तरीके का अपराध किया है। तो इस तरीके की ये सारी जो प्लान जो अपन ने जो डिस्कस किया है, ये आपका पूरा का पूरा इस दंड प्रक्रिया संहिता में। क्या इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे कन्फेशनल स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट्स के समक्ष है वो लिखबद्ध किए जाए, या इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे जो है कन्फेशन से अदर देन स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करवाए जाए, ऐसा 164 सीआरपीसी में प्रोविजन दे रखा है। उसका प्रोविजन के साथ साथ प्रोसीजर भी दे रखा है। क्या अभियुक्त को जो है वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान 24 आवर्स में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है तो उसको पीसी या जेसी में भेजा जाए या नहीं, पुलिस कस्टडी में उसको ऑथराइज किया जाए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, या उसको जेसी में जुडिशियल कस्टडी में मींस जेल में वो भेजा जाए, या उसको बेल ग्रांट की जाए, तो उसको पीसी और जेसी में भेजने की जो कोर्ट की पावर है और उसका मैक्सिमम पीरियड भी क्या रहेगा, कितने पीरियड में चार्जशीट फाइल नहीं होती है तो उसका डिफॉल्ट बेल का राइट है वो अराइज होगा, इसके बारे में डिटेल प्रोविजन 167 सीआरपीसी में दे रखे हैं। केस डायरी करके आपको पढ़ने को है वो मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन डायरी भी कह सकते हो उसको आप, पुलिस डायरी भी कह सकते हो। तो ये आईओ का वो डॉक्यूमेंट्स होता है और जिसमें वो इन्वेस्टिगेशन की डे टू डे जो प्रोग्रेस होती है उसको नोट करता है, तो उसके बारे में भी 172 में डिटेल प्रोविजन दे रखा है सीआरपीसी के अंदर। जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड भी एक्सप्रेस प्रोविजन है, किस केस का ट्रायल और इंक्वायरी कहाँ पर की जाए। सामान्य जो नियम है कि जहाँ ऑफेंस हुआ है, वेयर ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, उस एरिया पर, उस क्षेत्र पर जिस कोर्ट का जुडिक्शन है, सीआरपीसी की फर्स्ट शेड्यूल के अनुसार उसकी कॉम्पिटेंसी को ध्यान में रखते हुए कंसर्न कोर्ट है वो ट्राई कर सकता है। ऑप्शनल है वो जुडिक्शन भी है, एक से ज़्यादा कोर्ट्स के जुडिक्शन भी है, अपराध किसी एक कोर्ट के जुडिक्शन में हुआ है, अक्यूज किसी दूसरे कोर्ट के जुडिक्शन में रह रहा है, या स्टोलन प्रॉपर्टी किसी दूसरे कोर्ट के जुडिक्शन में रिसीव हुई है या रिटर्न की गई है, तो वहाँ एक से अधिक न्यायालय का वो जुडिक्शन भी है वो हो सकता है।
तो ऐसी बहुत सारी बातें जो है इस सीआरपीसी के अंदर है वो एट लेंथ और विस्तृत रूप से है वो दे रखी है, जिसको अपन डे टू डे क्लासेस में पढ़ेंगे। और लगभग ये सब्जेक्ट आपका 2 महीने जो है वो ले जाएगा। एवरी डे 2 आवर्स की क्लास होगी, तब जाके ये 60 डेज में वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा भी है। 484 सेक्शन है इसके अंदर और 2 शेड्यूल्स भी है इसके साथ, और कई सारे प्रोविज़न तो अपने आप में वो लेंदी है, मतलब एक एक क्लास एक एक सेक्शन ले जाएगा, ऐसे लंबे है वो प्रोविज़न है सीआरपीसी के अंदर। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो लॉ बना रखा है प्री इंडिपेंडेंस वो शॉर्ट एंड स्वीट है, और ये इंडियंस के द्वारा बनाया गया है वो लॉ है 1973 का। तो इसमें जितनी हमारे दिमाग में बातें आ रही थी वो हमने इसको इसके अंदर है वो शामिल कर दिया, इसलिए ये काफ़ी लेंदी है, वो बड़ा है वो लॉ है। यस, व्हाट इज द पर्पज, व्हाट इज द पर्पज और ऑब्जेक्ट ऑफ द पासिंग द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। प्रक्रिया संहिता को पारित करने का जो है वो उद्देश्य क्या रहा, लेजिस्लेचर ने किस ऑब्जेक्ट से इसको है वो पारित किया। दैट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ relating to the criminal procedure. This is the sole purpose or object of the passing the criminal procedure code 1973. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को पारित करने का उद्देश्य क्या रहा विधायिका का, दंड प्रक्रिया से संबंधित जो विधि है भारत के अंदर, उस विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉ रिलेटेड टू द क्रिमिनल प्रोसीजर इन इंडिया। दो इन इंडिया टर्मिनोलॉजी इज नॉट यूज्ड अंडर दिस frame, this phrase, but it is understood. What is the history of the criminal procedure code in India? In India, first time CRPC was enacted in the year of the 1861. In era of the Lord Macaulay, in 1859 the Civil Procedure Code was enacted, and in 1860 the Indian Penal Code was enacted, and in next year in 1861 the Criminal Procedure Code was enacted first time in India. Then that Criminal Procedure Code which was first time enacted in the year of the 1861 substituted in the year of the 1872. After then the substituted in the 1882 years, that is the General Criminal Procedure Code incorporated with the 1882, and which was applicable on the both general criminal courts and the presidency courts. After then again the substituted in the year of the 1898, containing the 565 sections, 46 chapters and the 5 schedules in the Criminal Procedure Code 1898, and lastly the substitution in the year of the 1973, that is the present Criminal Procedure Code. And in the Criminal Procedure Code 1973, the 484 sections, 37 chapters and 2 schedules. This was the history of the Criminal Procedure Code in India. The subject of the criminal procedure is covered under the which one of the list of the 7th schedule of the Constitution, whether it cover under the Union list, whether it cover under the concurrent list, and whether it cover in state list. The subject of criminal procedure cover under the concurrent list, and in which entries? The entry number 2. Entry number 2 of the concurrent list is concerned to the subject of criminal procedure, includes the probation and juvenile justice. Entry number 1 is concerned to the substantive criminal law. Entry number 1 of the concurrent list is concerned to the substantive criminal law like the IPC or the other substantive criminal law, and the entry number 2 is concerned to the criminal procedure, including the probation and the juvenile justice. So many times the question asked from this point, the entry number 2 of the concurrent list, the subject of the criminal procedure is covered under the which one of the following list of the 7th schedule of Constitution. The first option is Union list, second is state list, third is the concurrent list. The right option is the concurrent list, and in specific
the entry number 2 is concerned to the criminal procedure. There are 37 chapters, 484 sections and the 2 schedules included contents in the Criminal Procedure Code 1973. 37 अध्याय है इस दंड प्रक्रिया संहिता में, 484 धाराएं हैं टोटल और 2 अनुसूचियां भी है इसमें. शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द CRPC is concerned to the classification of the offenses of the Indian Penal Code or the offenses under any other laws. And the second schedule of the CRPC is concerned to the forms of the summon, warrants of arrest, charge, order of the attachment, etc. And there are 56 forms in the second schedule of the CRPC. जो फर्स्ट अनुसूची है, प्रथम अनुसूची, उसके अंदर अपराधों की प्रकृति के बारे में दे रखा है, वर्गीकृत किया गया है. ये आईपीसी के जो अपराध है 109 से लेकर और 511 तक एवरी ऑफेंस का क्लासिफिकेशन दे रखा है कि वो ऑफेंस कैसा है, वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है, वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, एंड ट्राइबल बाय द विच कोर्ट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच ऑफेंस. अपराध की प्रकृति क्या है, उसकी संज्ञेय है या असंज्ञेय, वो जमानती है या अजमानती अपराध है, और तीसरी जो बात है वो किस न्यायालय के द्वारा विचारणीय सक्षम न्यायालय कौन सा उसका ट्रायल करने के लिए, ये जो है वो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मेंशन कर रखा है. आप देखेंगे उस शेड्यूल के अंदर कॉलम नंबर फर्स्ट से लेके और 6 तक के अंदर, तो आपको 4th, 5th एंड 6th जो कॉलम है वो इस कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल एंड ट्राइबल बाय द विच कोर्ट्स, इनसे वो रिलेटेड मिलेगा. और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है वो सीरीज नंबर से रिलेटेड होगा, एक दूसरा सेक्शन नंबर होंगे उसमें आईपीसी का, और तीसरा ऑफेंस का नेम क्या है या उसका टाइटल या हेडिंग क्या कंसर्न सेक्शंस का. सेकंड शेड्यूल जो उसमें वेरियस फॉर्म्स है, प्रारूप दे रखे हैं. अक्यूज को यदि समन भेजा जाना है 61 सीआरपीसी में, उसका फॉर्म क्या होगा, प्रारूप क्या होगा, जो इस सेकंड शेड्यूल में है वो मिलेगा आपको सीआरपीसी. विटनेस को यदि मान लो सेक्शन 69 सीआरपीसी में कोई समन भेजा जाना है, उसका डिफरेंट फॉर्म है, उसका फॉर्म क्या होगा वो भी आपको है वो इस सेकंड शेड्यूल के अंदर मिलेगा. गिरफ्तारी वारंट यदि कोर्ट ने जारी किया है तो उसका फॉर्म क्या होगा, और उसके अंदर भी 2 प्रकार के प्रैक्टिकल है, एक बेलेबल अरेस्ट वारंट और एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट. जमानती गिरफ्तारी वारंट, एक दूसरा गैर जमानती जो गिरफ्तारी वारंट है, उसका भी फॉर्म है वो आपको सेकंड शेड्यूल के अंदर वो मिलेगा. कुर्की जो ऑर्डर है जो सेक्शन 84 एटसेट्रा में 83 के अंतर्गत होता है, तो वो कुर्की के ऑर्डर का भी फॉर्मेट है वो क्या रहेगा, ये भी आपको सेकंड शेड्यूल के अंदर मिलेगा. और ऐसे वेरियस फॉर्म दे रखे हैं उसके अंदर. बॉन्ड को एग्जीक्यूट होना है, पर्सनल बॉन्ड, श्योरिटी का बॉन्ड है, उसका फॉर्म क्या रहेगा, ये आपको इसमें है वो मिलेगा. डेथ पनिशमेंट जो है वो उसका एग्जीक्यूशन का है वो फॉर्म क्या रहेगा, या प्रोसीडिंग कमिट हो रही है तो उसका कोई फॉर्मेट है तो वो क्या रहेगा, या कमिटल कोई ऑर्डर है उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, या पीपी को 209 में कोई नोटिस दिया जा रहा है सीआरपीसी में, उसका फॉर्म क्या रहेगा. तो ऐसे बहुत सारे जो इवन चार्ज का फॉर्म भी, आरोप का है वो क्या रहेगा, फॉर्म नंबर 32 इससे रिलेटेड है चार्ज से. तो ऐसे करके 1 to 56 56 है वो टोटल प्रारूप दे रखे हैं. लास्ट के अंदर आप डायरेक्ट से देखना, तो उनमें से सारे इंपॉर्टेंट नहीं है बट कुछ इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उनको जरूर अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे. देन सैलिएंट फीचर ऑफ द न्यू कोड 1973, ये जो नई जो सीआरपीसी बनाई गई 1973 में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, इसकी क्या मुख्य विशेषताएं जो पहले वाले सीआरपीसी थी उससे इसको डिफर करता है. देयर आर सर्टेन सैलिएंट फीचर ऑफ द न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973. द फर्स्ट एंड द यूनिक फीचर ऑफ द न्यू कोड 1973 व्हाट, द separation of the judiciary from executive. Separation of the judiciary from executive, that is the unique feature of the new criminal procedure code 1973. Another provision as to the fair and speedy trial. This is also the salient feature of the criminal procedure code, like the section 167, 211, 313, 273, 353, 309. All these provisions are concerned to the fair and speedy trial. Accused is competent witness of defense. Accused is competent witness of the defense. This is also the salient of the Criminal Procedure Code 1973, section 315 CRPC. Then provision as to the legal aid
to the accused. This provision is also the salient feature of the new Criminal Procedure Code 1973 and provided under section 304 of CRPC. Provision as to the anticipatory bail, section 438. In old Criminal Procedure Code 1898 or the earlier codes, there is no provision of the anticipatory bail. The first time this included in the Criminal Procedure Code 1973. Abolition of the third class magistrates court. Earlier to the commencement of the Criminal Procedure Code 1973, there was also the three categories of the magistrate: first class magistrate, second class magistrate, and the third class magistrate. The third class magistrate is abolished by the Criminal Procedure Code 1973, and now the two types of the magistrate: first class and second class. Provision of the High Court's control over the judicial magistrates and the state government's control over the executive magistrate. This is also a salient feature of the new code 1973. Provision as to the set off the period of the detention undergone, provided under section 428 of CRPC. Such type of the provision was not in the old Criminal Procedure Code 1898 or the earlier codes. These are the certain salient feature of the Criminal Procedure Code 1973. हिंदी में आप देखेंगे यही बातें जो अपन ने डिस्कस की है। दंड प्रक्रिया का जो विषय है, ये कौन सी सूची का विषय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार वो पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ऑब्जेक्टिव जो आपका पेपर है, चाहे वो एपीपी का है, चाहे वो जेएलओ का है, चाहे आरजेएस का है, चाहे एडीजे का पेपर है, ये समवर्ती सूची है और प्रविष्टि संख्या 2 में आता है। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दे रखी है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं? कितने भानुप्रिया? 47। ये किसने बोला? हाँ, वो कॉन्करेंट लिस्ट में। किस में 47? कॉन्करेंट लिस्ट में। यूनियन लिस्ट के अंदर 97 सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 66 है और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने? 47 सब्जेक्ट है। संघ सूची में 97 विषय, राज्य सूची में 66 विषय और समवर्ती सूची में कितने? 47 विषय। यस, तो ये समवर्ती सूची का विषय है और उसमें भी एंट्री नंबर 2 में कवर होता है। सीपीसी कौन सी एंट्री में कवर होती है? कॉन्करेंट लिस्ट की 13 में। एंट्री नंबर 13 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इज कंसर्न टू द सिविल प्रोसीजर इंक्लूडिंग द लिमिटेशन एंड आर्बिट्रेशन। समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या जो 13, ये लिखना नहीं, केवल सुनना है। आज तो लिखना केवल सीआरपीसी का, वो भी कम से कम। ये सब लिखा हुआ मैटर दे दूंगा मैं, जैसा लिखा हुआ है ना वैसे हूबहू। इंग्लिश वालों को इंग्लिश में मिल जाएगा हूबहू और हिंदी वालों को हिंदी में मिल जाएगा। आप तो माइंड ओपन रखें और सुने ज़्यादा से ज़्यादा और उसको याद करें, मेमोराइज करें। उसको लिखने का काम रफ रजिस्टर में करें याद करने के पर्पज़ के लिए। फेयर में तो मैं बहुत अच्छा लिखा हुआ दे दूंगा आपको। यस, तो ये समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 2 का विषय। इसका मतलब क्या हुआ कि इस विषय पर संसद भी लॉ बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकता है। दंड प्रक्रिया के विषय पर संसद भी विधि बना सकता है और राज्य विधानमंडल भी विधि बना सकता है। ऐसी बात कहां दे रखी है? अनुच्छेद 246 में ऐसी बात दे रखी है। आर्टिकल 246 जो है उसमें दे रखी है ऐसी बात। जो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है उस पर, सब्जेक्ट टू द क्लॉज फर्स्ट ऑफ द आर्टिकल 246, द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव द पावर टू इनेक्ट द लॉज। दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित उद्देश्य क्या रहा इसमें? क्यों ऐसी है वो विधि है वो बनाएगी दंड प्रक्रिया संहिता की? क्या पर्पज रहा? पर्पज स्टार्टिंग में सेक्शन 1 से जस्ट पहले आपको बैरेक्ट में मिल जाएगा, आपके पास यदि बैरेक्ट हो तो। क्या लिखा हुआ उसमें? दंड प्रक्रिया से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए। क्या पर्पज बता रखा है? दंड प्रक्रिया से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने के लिए। टू कंसोलिडेट मींस उस मैटर से रिलेटेड सारी जो लॉ इंडिया में इन्फोर्स में है उसको एक ही जगह पर करने के लिए। एंड अमेंड मींस जो एग्जिस्टिंग लॉ था 1898 का, उसको अमेंड करने के पर्पज के लिए इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को है वो पारित किया गया, या इस दंड प्रक्रिया संहिता को है वो अधिनियमित किया गया।
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का जो दंड प्रक्रिया संहिता का जो है भारत के अंदर इतिहास क्या है, पहली बार कब बना, ऐसे कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। भारत में पहली बार दंड प्रक्रिया संहिता है वो कब बनी थी? 1861 में। तीन चीजें आपको एक लाइन में याद रखनी है। सीपीसी 1859 में बनी थी, आईपीसी 1860 में, और सीआरपीसी कौन से ईयर में बनी? 1861 में। सीपीसी जो सिविल प्रोसीजर कोड फर्स्ट टाइम जो है वो 1859 में बना था, आईपीसी 1860 और सीआरपीसी 1861। ये तीनों जो वर्ष है वो कंटिन्यू है। सबसे पहले सीपीसी, देन आईपीसी, देन सीआरपीसी। और 18 क्या पिस्ता डेट या वर्ष? 1860 है, ये तो विश्वविख्यात है, इसमें क्या बताना। यस, 1861 में पहली बार सीआरपीसी बनने के बाद पूरी सीआरपीसी 1872 में प्रतिस्थापित हुई। जो पहले वाला लॉ चेंज होकर उसके स्थान पर एंटायर लॉ, छोटा मोटा अमेंडमेंट तो चलता रहता है, एंटायर लॉ जब वो चेंज होता है तो वो सब्सटीट्यूशन कहलाता है, वो प्रतिस्थापित है वो करना कहलाता है। देन उसके बाद सेकंड जो सब्सटीट्यूशन हुआ 1882 में, 1882 में, और साधारण दंड प्रक्रिया संहिता है वो बनी गई इस ईयर। जो दोनों प्रकार के कोर्ट थे उस समय ब्रिटिश भारत के अंदर, जो प्रेसिडेंसी जो न्यायालय थे और मुफ्सिल कोर्ट थे, दोनों पर है वो लागू होती थी। उसके बाद 1898 में फिर प्रतिस्थापित हुई। 1882 की सारी सीआरपीसी है वो चेंज हुई। और ये जो 1898 की सीआरपीसी थी इसमें 46 अध्याय थे, 565 धाराएं थी और 5 अनुसूचियां थी। कहीं कहीं आप देखेंगे प्रोबेशन एक्ट में, और जो पुराने लॉज है 1973 से पहले के जो लॉज बने हुए उसमें 1898 के आपको कई सेक्शन है वो पढ़ने को मिलते हैं। 562 कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, कहीं 565 है वो लिखा हुआ मिलेगा, कहीं 416 416 ए आपको है वो लिखा हुआ मिलेगा। वो ओल्ड कोड के, वो 1898 के। हाँ जी, क्लास में हूँ भैया। आप 7 बजे के आसपास कांटेक्ट करें। यस, तो ये जो 1898 की सीआरपीसी थी, जस्ट 1973 से पहले वाली, उसमें 565 टोटल धाराएं थी और 5 अनुसूचियां थी और 46 अध्याय थे। उसके बाद 1973 में ये प्रतिस्थापित हुई दंड प्रक्रिया संहिता, जो वर्तमान सीआरपीसी जो आपके सिलेबस का पार्ट है। आपके जो सिलेबस है आरजेएस का या जेएलओ का या आईपीपी, उसके अंदर 1973 की सीआरपीसी है सिलेबस के अंदर। और इसमें टोटल 37 अध्याय हैं, 484 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां। और ये ऐसा कहा जाता है कि ये जो सीआरपीसी है 1973 की, ये जेएल कपूर की रिपोर्ट पर बनाई गई थी। किस पर? जेएल कपूर। जेएल कपूर करके ये जूरिस्ट विधि शास्त्री हुए या वो विधि आयोग एटसेट्रा के अध्यक्ष वगैरह होंगे, इनकी रिपोर्ट पर या रिकमेंडेशन पर है ये सीआरपीसी 1973 है वो बनाई गई थी। ऐसा कई बार अपन पढ़ते हैं ना कि साहब ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर है वो शामिल की गई। ये पंचायती राज से रिलेटेड जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ये एमएल सिंघवी की जो रिपोर्ट थी उनके वो रिकमेंडेशन पर बनाई गई। तो सिमिलरली ये जो सीआरपीसी 1973 है, ये जेएल कपूर की रिपोर्ट या उनकी रिकमेंडेशन पर है वो बनाई गई थी। जैसा अपन ने पहले डिस्कस किया कि साहब विधि 2 प्रकार की होती है, और भी बेसिस हो सकते हैं क्लासिफिकेशन के या डिफरेंस के। यहां 2 प्रकार का मतलब मौलिक और प्रक्रियात्मक विधि से। मौलिक को सारवान विधि भी कहा जाता है। किसे कहते हैं मौलिक विधि या सारवान विधि? व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करने वाली या निर्धारित करने वाली या सृजित करने वाली जो विधि है वो क्या कहलाती है? वो मौलिक या सारवान विधि कहलाती है। जैसे भारतीय दंड संहिता जो आपकी है वो क्या है? वो सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ है। सारवान या मौलिक है वो आपराधिक विधि है। संविदा जो अधिनियम है आपका, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो भी क्या है? वो भी सब्सटेंटिव सिविल लॉ। लॉ ऑफ टॉर्ट कुछ पोर्शन उसका अनकोडिफाइंग भी है, फिर भी वो क्या है? वो सब्सटेंटिव है, वो सिविल लॉ है। सारवान है वो
सिविल विधि है। हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ ये भी क्या है, पर्सनल लॉज है, बट ये भी है वो सिविल लॉ का ही है वो पार्ट्स है। और ये भी क्या है, सब्सटेंटिव लॉ है, सार्वभौम अधिकार है, जो मैरिज के जो पार्टीज वगैरह उनके राइट्स और ऑब्लिगेशन से कंसर्न है। दूसरा जो प्रकार विधि का, प्रक्रियात्मक विधि, प्रोसीजर लॉ। मौलिक विधि जो इससे पहले अपन ने पढ़ी, उसके अंदर जो परिभाषित और निर्धारित जो अधिकार है और जो कर्तव्य है, उनके प्रवर्तन की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने वाली विधि, उनके इन्फोर्समेंट या प्रवर्तन की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने वाली विधि है वो क्या कहलाती है, वो प्रक्रियात्मक विधि कहलाती है। जैसे आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्पनसेशन का राइट है, संविदा भंग की दशा में आपको क्षतिपूर्ति का या प्रतिकर का है वो अधिकार है, ऐसा राइट तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने दे दिया आपको सेक्शन 73 में, बट हाउ टू इन्फोर्स दैट राइट, उस अधिकार का आप प्रवर्तन कैसे करवाएं, उसके लिए फिर आपको सीपीसी में जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा आपको, सिविल प्रोसीजर कोड की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको प्लान प्रेजेंट करना होगा, वाद पत्र है वो पेश करना होगा उसके लिए, और वाद पत्र के साथ है वो एफिडेविट है वो होना चाहिए, वाद पत्र के वो कंटेंट्स होने चाहिए जो ऑर्डर 7 रूल फर्स्ट में दे रखे हैं। फिर वाद पत्र पेश हुआ, उसके बाद कोर्ट समन भेजेगा सेकंड पार्टी को, डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट डब्ल्यूएस फाइल करेगा, डब्ल्यूएस फाइल होने के बाद है वो कोर्ट को इस ऑर्डर 10 का एग्जामिनेशन भी कर सकता है, कोई इंट्रोगेटरीज भी भेजी जा सकती है, और जो एडमिशन एंड डिनाइल्स एटसेट्रा कंप्लीट होने के बाद कोर्ट उसमें इश्यू फ्रेम करेगा। फिर एविडेंस स्टार्ट होगी प्लेंटिफ की, उसके बाद डिफेंडेंट की एविडेंस होगी, आर्ग्यूमेंट होंगे, और देन जाके अब उसमें डिसीजन होगा। तो ये जो प्लान प्रेजेंट करने से लेके और डिसीजन होने तक की सारी जो यात्रा है, ये सफर, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ में नहीं मिलेगा। ये कहां मिलेगा आपको, प्रोसीजर लॉ में मिलेगा। ये सिविल प्रोसीजर कोड में मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने आपको एक अधिकार दे दिया, राइट आपके फेवर में एक अराइज कर दिया, एक क्रिएट कर दिया, एक कन्फर कर दिया कि साहब कॉन्ट्रैक्ट था यदि दो पार्टीज के बीच में, और एक पार्टी ने यदि उसको ब्रीच किया है तो दूसरी पार्टी एग्रीव्ड है उससे, और उसको जो लॉस हुआ है या डैमेज हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच होने से, उसके लिए वो दूसरी पार्टी से या ब्रीचिंग करने वाली जो पार्टी या डिफॉल्टर जो पार्टी है उससे कॉम्पनसेशन लेने के लिए वो एंटाइटल है। तो राइट तो आपका कहां से क्रिएट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ सेक्शन 73 से हुआ, बट उस राइट के इन्फोर्समेंट का प्रोसीजर सारा आपका कहां मिलेगा आपको सिविल प्रोसीजर कोड में मिलेगा। तो ऐसी जो विधि, इसी तरीके से मान लो किसी ए नामक व्यक्ति ने बी नामक व्यक्ति का मोबाइल चुरा लिया, कंप्यूटर चुरा लिया, लैपटॉप चुरा लिया, मोटरसाइकिल चुरा ली। हाँ, चोरी का जो अपराध है, जो नेगेटिव राइट्स है कि चोरी नहीं होनी चाहिए, 378 में उसको परिभाषित कर रखा है, और उसके लिए पिनलाइज जो प्रोविजन है 379, 380 एटसेट्रा जहां पर भी फॉलो होता है वो, तो वो अधिकार तो आपका सब्सटेंटिव जो राइट्स है कि साहब चोरी नहीं करने का एक नेगेटिव ड्यूटी थी उस व्यक्ति की, और उसका न करके उसने जो है ऐसा कृत्य किया जो आईपीसी के वायलेशन में, और उससे चोरी का अपराध बनता है, चोरी का ऑफेंस मेड आउट हो रहा है, और उसके लिए वो ये पनिशमेंट रहेगा। ऑफेंस की डेफिनेशन और इंग्रेडिएंट्स और उसका पनिशमेंट ये तो आपको आईपीसी से पता चल गया, पर इससे वो दंडित थोड़ा ही हो गया। उसको दंडित करने के लिए आपको या तो एफआईआर करवानी पड़ेगी या परिवाद करना होगा, और उसकी जो एफआईआर दर्ज होने से लेके और परिवाद दर्ज होने से लेके और जजमेंट तक पहुंचने, और जजमेंट के बाद भी यदि कोई एग्रीव्ड है, कन्विक्शन का तार उसके खिलाफ अक्यूज जा सकता है, या एक्विटल का तार तो उस केस में विक्टिम जा सकती है, या गवर्नमेंट जा सकती है, ऊपर है वो अपील एट सकता में। तो ये जो प्रोसीजर है आपका एफआईआर दर्ज करवाने का, परिवाद दर्ज करने का, उसको प्रूव किया जाना चोरी के अपराध को ट्रायल के अंदर, और अल्टीमेटली उसको कन्विक्टेड या एक्विटल जो कुछ भी मेरिट पे ऑर्डर होता है, ये सारा प्रोसीजर आपको कहां मिलेगा, ये सीआरपीसी में दंड प्रक्रिया संहिता में मिलेगा। यस, तो जो सार्वभौम विधि के अंदर अधिकार और दायित्व का जो सृजन हुआ है या परिभाषित कर रखा है, उनके प्रवर्तन की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने वाली जो विधि है वो क्या कहलाती है, वो प्रक्रियात्मक विधि कहलाती है। और इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता प्रक्रियात्मक विधि है, सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के संदर्भ में। दंड प्रक्रिया संहिता ये भी प्रक्रियात्मक विधि है, अपराधों के संदर्भ में क्या प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये दोनों पे लागू होता है, सिविल और क्रिमिनल दोनों के प्रोसीजर पे, ये भी प्रक्रियात्मक विधि है। परिसीमा अधिनियम ये भी है वो प्रक्रियात्मक विधि का ही है वो पार्ट है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम ये भी इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि ये प्रोसीजर लॉ का ब्रांच है, ये प्रक्रियात्मक विधि का भाग है। और कोर्ट फीस एक्ट एटसेट्रा जो है ये भी, इसको भी प्रक्रियात्मक विधि का भाग है वो माना जाता है।
तो इससे इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि हम जिस सब्जेक्ट को आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं वो किसका पार्ट है, इस सेकंड लॉ का पार्ट है, वो प्रोसीजर लॉ या प्रक्रियात्मक विधि का भाग है। नई जो सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 बनाई गई या पारित की गई, अधिनियमित की गई, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? कभी कभी इससे उठा के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यहां आपको ये जो पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आपका टाइम खराब करना है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं और मैंने खुद ने फेस कर रखा है इससे क्वेश्चन। इसी पोर्शन में से कौन सा इसमें से है वो यूनिक फीचर है, यूनिक सैलेंट फीचर है इस न्यू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का? ऐसा 2011 का आप पेपर उठा के देखना आरजेएस का और एपीयू का, तो आपको क्वेश्चन हो सकता है फर्स्ट नंबर पर ही मिल जाए, या स्टार्टिंग के जो शुरू के 1 to 5 क्वेश्चन है उसमें मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो इसलिए केवल सेक्शन 1 से स्टार्ट करने के बजाय कुछ हिस्ट्री भी आपको उसकी है वो पता होनी चाहिए, और ऐसी चीजें इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में स्कोप है या तो इसका और या इंटरव्यू में, मेंस में नहीं है। दोनों में से किसी भी स्टेज पे, इंटरव्यू में भी ऐसा पूछा जा सकता है। ऐसे कौन से प्रोविजन है सीआरपीसी के अंदर जो पुराने सीआरपीसी में नहीं थे, पहली बार इस नई है वो सीआरपीसी में शामिल किए गए? तो ऐसी कोई चीज इंटरव्यू में भी है वो पूछी जा सकती है। ऐसा कोई यूनिक है वो फीचर बता सकते हो सीआरपीसी का जो है, जो डिफरेंट है वो करता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, जिसका आंसर फर्स्ट पॉइंट ही है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथक्करण है, ये नई सीआरपीसी 1973 की मुख्य विशेषता है। आप 1973 से पहले पीछे जाएंगे हिस्ट्री के अंदर, तो जो आईएएस ऑफिसर होते थे या जो सिविल सर्विसेज के मेंबर होते थे वो ही जुडिशरी का काम भी देखते थे। एक ही अधिकारी जो है प्रशासनिक सेवा भी देता था और वही न्यायिक कृत्यों का संपादन करता था। तो इस दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के द्वारा पहली बार डिफरेंशिएट किया गया और उनके काम भी बांटे गए, अलग कर दिया। इसमें ट्रायल का सारा पावर है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट वगैरह को दे दिया, जो प्रिवेंटिव एक्शंस है वो पावर है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स को है वो दे दी गई, और कंट्रोल भी अलग अलग कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का सारा कंट्रोल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, और जुडिशियल साइड के सारी जो अथॉरिटीज है उसका कंट्रोल हाई कोर्ट को दे दिया। दूसरा जो मुख्य विशेषता इस दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की, शीघ्र एवं ऋजु विचारण या शीघ्र एवं उचित विचारण से संबंधित प्रावधान। 167 भी उदाहरण के रूप में बता सकते हो, 309 बता सकते हो, 313 बता सकते हो, 211 बता सकते हो, और भी कोई प्रोविजन हो सकता है शीघ्र एवं ऋजु विचारण से संबंधित। अभियुक्त को विधिक सहायता देने का प्रावधान, यह भी पुरानी सीआरपीसी 1898 में नहीं था, और उससे ओल्ड जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थे 1861 से लेके और 1872, 1882 वगैरह, उनमें भी नहीं था ऐसा प्रावधान। ये पहली बार इस दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में वो शामिल किया गया। अभियुक्त को विधिक सहायता देने का प्रावधान धारा 304 में एक्सप्रेस रूप से है इस न्यू कोड के अंदर। अभियुक्त का प्रतिरक्षा के लिए सक्षम साक्षी होना, यह प्रावधान भी ओल्ड कोड में नहीं था। नई कोड की इस धारा 315 में इस तरीके का प्रोविजन दे रखा है, अक्यूज इज द कॉम्पिटेंट विटनेस ऑफ द डिफेंस। ये प्रोविजन ओल्ड कोड में नहीं था, ये सैलिएंट फीचर है, ये मुख्य विशेषता है इस न्यू कोड की। इवन स्वयं पैरवी करने का अधिकार, ऐसा भी आपको 302 के सबसेक्शन 2 के इंटरप्रिटेशन में पढ़ने को मिलेगा। एक व्यक्ति जो है वो अपना स्वयं पैरवी कर सकता है, ऐसा कहीं जो है, या प्लीडर के माध्यम से पैरवी कर सकता है, ऐसा इंटरप्रिटेशन भी आपको 302 के सबसेक्शन 2 में मिलेगा। ये भी इस न्यू कोड का है वो सैलिएंट फीचर है। भुगती हुई निरोध की अवधि को मुजरा किया जाना, धारा 428 जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का है, ऐसा प्रावधान पुराने लॉज में नहीं था। ये जो कन्विक्टेड पर्सन है उसके वेलफेयर में है ये प्रोविजन। दोषित जो व्यक्ति है उसके वेलफेयर में, मान लो कोई केस था, मर्डर ट्रायल थी या अन्यथा कोई ऐसी ट्रायल थी जिसमें 10 साल तक ट्रायल है वो चलती रही, और उस 10 साल में उसको जमानत नहीं मिली, पूरे ट्रायल के दौरान वो अंदर रहा, और अल्टीमेटली मान लो उसमें जाके और 14 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। जो फाइनल सेंटेंस है वो 14 वर्ष का कारावास दिया जाता है, और 10 साल तो उसने सजा है वो विचारण के दौरान ही भुगत ली। और विचारण के दौरान भुगती गई सजा को जब तक प्रोविजन नहीं हो सेट ऑफ का, वैसे तो आप कर नहीं सकते, न्यायालय के कार्य से किसी को हानि नहीं होती, ऐसा आपने पढ़ रखा है ना। कौन सी लैटिन मैगजीन से इस पर, नॉन ग्रेविटा ऐसा करके, हाँ, एक्टिस क्यूरिस नॉन ग्रेविटा, हाँ हाँ, इस तरीके से है कुछ, कोर्ट के कार्य से किसी को हानि या क्षति नहीं होती। तो ये कन्विक्टेड पर्सन के फेवर में बनाया गया कि 10 साल गुजर गए हैं पहले ही अंडर ट्रायल जो है उसके,
उनको आप कम करो उन 14 में से, और जो रिमेनिंग ईयर्स बचे हैं उसका एग्जीक्यूशन करवाओ आप। 14 ईयर्स में से 10 साल तो पहले वो लैप्स करो जो ट्रायल के दौरान उसने सजा भुगत ली है या वो कारावास में रह चुका है, और पीछे जो बची हुई अवधि है उसके लिए उसका सजा वारंट है वो तैयार किया जाए। ये दोषित व्यक्ति के वो वेलफेयर में या उसके हित में ऐसा प्रावधान है। ये ओल्ड कोड में नहीं था, ये इस नई सीआरपीसी 1973 में पहली बार है वो शामिल किया गया। इवन अग्रिम जमानत का प्रावधान जो है धारा 438 में सीआरपीसी में, ये भी ओल्ड कोड में नहीं था। 1898 की आपकी जो सीआरपीसी थी और उससे पहले की सीआरपीसी, उसमें अग्रिम जमानत का या एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं था। यह प्रावधान भी पहली बार इस नई सीआरपीसी 1973 के अंदर है वो शामिल किया गया। तो इस तरीके से, और एक और इंपॉर्टेंट जो बात, तृतीय श्रेणी के न्यायालयों की समाप्ति। थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट के जो न्यायालय थे, इन न्यायालयों को समाप्त भी किया गया इस नए कोर्ट के द्वारा। 1898 का जो लॉ था उसके अंदर मजिस्ट्रेट की 3 कैटेगरीज थी, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट एंड थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट। बट इस न्यू कोर्ट के अंदर उस थर्ड क्लास को समाप्त कर दिया। क्लासेस ऑफ आप क्रिमिनल कोर्ट्स देखेंगे सेक्शन 6 के अंदर, अभी पढ़ेंगे 1-2 क्लास के बाद, जब भी उसका 6 क्लास में देखेंगे तो वहां थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट का कोई कोर्ट है वो मेंशन नहीं है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है एंड सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है। द कोर्ट ऑफ द थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट abolished by this new code 1973. So these are the certain salient feature of the criminal procedure code 1973. ये जो एक्ट नंबर है, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974, 1973 का जो लॉ है, इसका एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974, ये भी आपके प्रीलिम्स का जो पेपर है या ऑब्जेक्टिव पेपर है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ये व्हाट इज द एक्ट नंबर ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का अधिनियम संख्या क्या है ऐसा पूछ लेते हैं। उसमें ऑप्शन में एक एक्ट नंबर 2 ऑफ 1973 मिल सकता है, एक में एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 मिल सकता है, एक में एक्ट नंबर 9 ऑफ 1973 मिल सकता है, और नन ऑफ दावो, ऑल ऑफ दावो ऐसा मिल सकता है। आपको वेरी क्लियर रहना है इसका एक्ट नंबर क्या, एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 है। ये 1973 में इसका प्रपोजल या रेजोल्यूशंस या बिल है वो पेश किया गया था, और पास ये 1974 में हुआ था। इसलिए जिस ईयर में पास हुआ, जिस ऑर्डर या जिस क्रम में पास हुआ था, इससे पहले भी एक 1974 में एक्ट पारित हो गया था, इसलिए वो एक्ट नंबर 1 था, और ये एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974। ये डेट भी मेंशन कर रखी है, ये भी यूजलेस नहीं है, इस पर भी क्वेश्चन पूछते हैं। जेएलओ के पेपर में एक बार इस डेट पर भी क्वेश्चन पूछ लिया, डेट ऑफ द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इस दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति कौन सी तारीख को प्राप्त हुई, ऐसा क्वेश्चन जेएलओ के पेपर में एक बार पूछा गया। और इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन अभी वाला आरजीएस प्री पेपर आपने देखा हो तो उस इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन वाला जो आपका एक्ट है, वो एक्ट गजट पब्लिकेशन में कब पब्लिकेशन हुआ या गजट में पब्लिश कब हुआ, उसकी डेट क्या है, ये भी पूछ ली। उसके अंदर कौन सी डेट थी, उसमें दिसंबर थी ना, वो नहीं, 2 नहीं थे, 23 दिसंबर, 23 दिसंबर, जो भी ईयर था 1986 या 1987, ईयर पे मैं क्लियर नहीं हूं, बट डेट 23 दिसंबर है। जो उसकी एसेंट की डेट थी ना, सेम डे को वो गजट में नोटिफाई हो गया था एक्ट। तो इस तरीके के फैक्चुअल या तथ्यात्मक प्रश्न भी पूछा जाता है। और जहां गलाकाट प्रतियोगिता, एक एक नंबर की प्रतियोगिता है, जहां 0.01 से लोग सेलेक्ट होते हैं और 0.01 से बाहर होते हैं, वहां ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस की भी इंपॉर्टेंस है। इस दर्द को वो बता सकते हैं, अभी मेरिट जो है वो 72 रही ना, जिनके 71 नंबर आ रहे हैं वो इस दर्द को समझ सकते हैं कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे हाथ से निकल गई। और आज जो हमारे साथ तैयारी कर रहे थे, कुछ लोग मेंस लिख रहे हैं और हम नहीं लिख पा रहे हैं, हमारे कुछ साथी नहीं लिख पा रहे हैं, तो इसलिए ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। यदि क्लासिफिकेशन एंड द डिवीजन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 दंड प्रक्रिया संहिता का इसका 37 जो चैप्टर्स है, टाइटल का नेम एंड सेक्शंस का बंच, चैप्टर नंबर, टाइटल ऑफ द चैप्टर एंड सेक्शंस विच कवर अंडर द दैट चैप्टर।
इस पर भी क्वेश्चन आता है एक आध। ये भी बिल्कुल आपका है वो फ्रूटाइल एक्सरसाइज नहीं है, ये फ्रूटफुल एक्सरसाइज है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा चैप्टर जो है वो अपील का चैप्टर कौन सा है ऐसा पूछ लेते हैं कई बार, बेल बॉन्ड्स का चैप्टर कौन सा है वो पूछ लेते हैं, सेशन ट्रायल का चैप्टर कौन सा है ऐसा पूछ लिया जाता है कई बार। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन सीआरपीसी से चैप्टर से कंसर्न करके पूछे जाते हैं। लिमिटेशन का जो प्रोविजन है वो कौन से चैप्टर में, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चैप्टर्स का नंबर, उसका टाइटल और सेक्शंस के बंच ये आपके रेडी होने आवश्यक है। एवरी सब्जेक्ट के, प्रत्येक जो सब्जेक्ट जो आपका सिलेबस का पार्ट है, आरजेएस, एपीओ, जेएलओ, आरजेएस एडीजे एटसेट्रा, या अदर जो हरियाणा जुडिशियल, यूपी जुडिशियल, एमपी जुडिशियल, गुजरात जुडिशियल, जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो चैप्टर वाइज उनका क्लासिफिकेशन आपका रेडी होना आवश्यक है। ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बिल्डअप करता है। यदि सीआरपीसी की बात की जाए, फर्स्ट जो चैप्टर है प्रिलिमिनरी, ये टाइटल है इसका, सेक्शन 1 to 5, धारा 1 से लेकर और 5 तक कवर होते हैं इसमें। चैप्टर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। चैप्टर सेकंड का टाइटल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन या कंपोजिशन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस, एंड सेक्शन 6 to 25A cover under the chapter second of the CRPC. Title of chapter third is power of the courts, and section 26 to 35 cover under the chapter third of the CRPC. Chapter 4. Chapter 4 is concerned to the powers of the superior officers of the police, and one more portion, the assistant to the magistrate and police, divided into the two parts, the A and B part, section 36 to 40 of the CRPC. Chapter 5, arrest of persons, section 41 to 60A, 41 to 60A. Next, chapter 6 of the CRPC. The title of this chapter is processes to compel the appearance of the persons. Processes to compel the appearance of the persons. Section 61 to 90 cover under the chapter 6 of the CRPC. Next, chapter 7, processes to compel the production of the things or documents. Section 91 to 105 of the CRPC cover under this chapter. Then chapter 7A, reciprocal arrangements for the assistant in the certain matters and the procedure for the attachment and forfeiture of the property. Section 105A to 105L. Chapter 8 is concerned to the security for the keeping the peace and for good behavior. Section 106 to 124 cover under the chapter 8 of the CRPC. Chapter 9, very important for exam point of view, order for the maintenance of the wives, children and parents, section 125 to 128. Chapter 10 of CRPC is concerned to the maintenance of the public order and public tranquility, section 129 to 148, further divided into the 4 parts A, B, C, D. Chapter 11 of CRPC is concerned to the preventive action of the police, section 149 to 153. Then chapter 12, very very important for exam point of view, for prelims, mains and interview all stages. Information to the police and their powers to investigate, section 154 to 176. Then chapter 13, jurisdiction of the criminal courts and inquiries and trials, section 177 to 189. Then chapter 14, also very important, conditions requisite for the initiation of the proceedings, indirectly condition requisite for the taking cognizance, section 190 to 199 of CRPC. Chapter 15, complaint to the magistrate, section 200 to 203, 200 to 203 of CRPC.
Chapter 16, commencement of the proceeding before the magistrate, section 204 to 210, and chapter 17, concern to the charge and divided into the two parts, A and B, section 211 to 224. Then chapter 18. Chapter 18 is concerned to the session trial, the trial before a court of session, section 225 to 237. Chapter 19 is concerned to the warrant trial by magistrate, trial of the warrant cases by the magistrate, section 238 to 250, and divided into the three parts, A, B, and C. Chapter 20, procedure of the summon trial, trial of the summons cases by the magistrate, section 251 to 259. Then chapter 21, summary trials, section 260 to 265, section 260 to 265. Then chapter 21A, plea bargaining, section 265A to 265L. Then chapter 22, attendance of the persons detained and confined in the prisons, section 266 to 271. Then chapter 23, evidence in inquiries and trials, section 272 to 299. Chapter 24, very important for the prelims, mains and interview all stages, general provision as to the inquiries and trials, section 300 to 327. All important provision like 313, 311, 304, 309, 317, 320, 319, 323, 325, including the 327 itself. All these important provisions fall under this chapter, chapter 24 of CRPC. Then chapter 25, provision as to the accused person of the unsound mind, section 328 to 339. Then chapter 26, provision as to the offences affecting the administration of the justice, section 340 to 352, read with the 195 CRPC. Then chapter 27, the judgments, contents of the judgments, things related to the judgments, section 353 to 365. Then chapter 28, submission of the death sentences for the confirmation of the High Court, section 366 to 371. Next, chapter 29, consent to the appeal, section 372 to 394. Chapter 30 is consent to the references and revisions, section 395 to 405. Chapter 31 is concerned to the transfer of the criminal cases from one high court to another high court, one subordinate criminal court to the another subordinate criminal courts, section 406 to 412. Next, chapter 32 is concerned to the execution, suspension, remission, commutation of the sentences, section 413 to 435. Next, chapter 33, also important for the prelims, mains and interview all stages, provision as to the bail and bonds, section 436 to 450. Then chapter 34, disposal of the property, section 451 to 459. Chapter 35, irregular proceedings, section 460 to 466. And chapter 36, limitation for the taking cognizance for certain offences, for section 467 to 473. And the last chapter, chapter 37, miscellaneous provisions, section 474 to 484. हिंदी में भी देखेंगे आप इसी तरीके का क्लासिफिकेशन दंड प्रक्रिया संहिता का। ये बात पहले ही अपन डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें 37 अध्याय है, 484 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं। और अनुसूचियों के बारे में यदि ब्रीफ में देखा जाए, अनुसूची फर्स्ट अपराधों का वर्गीकरण से रिलेटेड और अपराध अनुसूची जो सेकंड है
वो समन आदि के 56 प्रारूप दे रखे हैं। आदि में इसमें गिरफ्तारी का वारंट, कुर्की का आदेश एटसेट्रा भी शामिल है। वर्गीकरण के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर वो अपराध किस प्रकृति का है, वो संज्ञेय है या असंज्ञेय है, ये प्रकृति आपको पढ़ने को मिलेगी। दूसरा जमानतीय है या अजमानतीय है, ये भी आपको पढ़ने को मिलेगी। और तीसरी बात जो है वो कौन से न्यायालय के द्वारा वो विचारणीय है, ये भी आपको है वो इस फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी के अंदर पढ़ने को मिलेगा। यदि चैप्टर वाइज क्लासिफिकेशन देखा जाए तो अध्याय जो फर्स्ट है अपना सीआरपीसी का, इसका हेडिंग जो है वो प्रारंभिक है और धारा 1 से लेकर और 5 तक कवर होती है इसमें। अध्याय सेकंड में दंड न्यायालयों की और दंडिक जो कार्यालय है मीन्स पीपी ऑफिस एटसेट्रा, उनका गठन से संबंधित प्रावधान है। धारा 6 से लेकर और 25A तक के प्रावधान है इसके अंदर। अध्याय जो 3 है वो दंडिक न्यायालयों की शक्तियों से संबंधित है, पनिशमेंट एक्ट, और धारा 26 से लेकर और 35 तक के प्रावधान है इसमें। अध्याय 4 जो है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। पहला भाग वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां, ये केवल सिंगल सेक्शन 36 है इसमें। और दूसरा जो भाग है इसका मजिस्ट्रेट और पुलिस को सहायता, इसमें 37 से लेकर और 40 तक है। अध्याय जो 5 है आपका व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान है इसमें। धारा 41 से 60 तक के वो प्रावधान कवर होंगे इसमें। अध्याय 6 हाजिर होने के लिए विवश करने के लिए आदेशिकाएं, किसी व्यक्ति को, इसमें 4 प्रकार की आदेशिकाएं पढ़ोगे आप। समन पढ़ने को मिलेगा आपको, गिरफ्तारी वारंट है वो पढ़ने को मिलेगा, फरार की उद्घोषणा पढ़ने को मिलेगी आपको, और कुर्की का आदेश भी पड़ेगा, और कुछ जो मिसलेनियस जो प्रोविजन है इनसे संबंधित वो भी पढ़ने को मिलेंगे। अध्याय जो 7 है चीजें और दस्तावेज जो है उनको पेश करने को विवश करने हेतु आदेशिकाएं, ये अध्याय 7 में कवर होगी। और ये धारा 91 से लेकर और 105 तक, धारा 91 से लेकर और 105 तक है वो कवर होगी। और इसमें भी अलग अलग आदेशिकाएं लाइक समन है, तलाशी वारंट है, तलाशी से संबंधित जनरल प्रोविजन है, और लास्ट में मिसलेनियस प्रोविजन है। चैप्टर जो 7A है 7 का, कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था, धारा 105 क से लेके और 105 जो है एल के लिए सर थोड़ा ये वर्ड इसमें ट होना चाहिए ना, ट या ठ, ठ ठ से ठंठेरा, यस। 105 क से लेके और 105 ठ तक जो है 105A to 105L तक के प्रावधान है इसके अंदर चैप्टर 7A में। इस पे एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया है 7A पे, इसके टाइटल या हेडिंग से। चैप्टर जो 8 है आपका अध्याय 8 परिशांति कायम रखने और सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभूति, धारा 106 से लेकर और 124 तक के प्रावधान कवर होंगे इसमें। अध्याय जो 9 है नेक्स्ट चैप्टर 9 पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण से संबंधित जो है वो आदेश करने से संबंधित प्रावधान, धारा 125 से लेकर और 128 तक। अध्याय जो 10 है जो 4 भागों में विभाजित है, लोक व्यवस्था और लोक प्रशांति बनाए रखने से संबंधित प्रावधान है इसमें, और धारा 129 से लेकर 148 तक के। पहला पार्ट है वो विधि विरुद्ध जमाव को है वो बिखेरना या तितर बितर करने से संबंधित है। दूसरा भाग लोक न्यूसेंस को हटाने से है, और तीसरा जो है न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले, और लास्ट में स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद से संबंधित है। तो ऐसे करके ये 129 से लेकर और 148 तक के प्रावधान, जिसमें लोक शांति और लोक प्रशांति है वो बनाए रखने से संबंधित कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स को पावर दे रखी है। अध्याय 11 जो है कई बार इसके टाइटल और हेडिंग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं चैप्टर 11 से। पुलिस के निवारक कार्य जो है धारा 149 से लेकर और 153 तक में दे रखे। अध्याय जो 12 है बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के एवरी स्टेज पे, पुलिस को इतला और उसके अन्वेषण करने की शक्तियां जो है, धारा 154 से लेकर और 176 तक एफआईआर दर्ज होने से लेकर चार्जशीट फाइल होना और मर्ग रिपोर्ट एटसेट्रा, ये सारा शामिल है इसके अंदर इस चैप्टर 12 में। अध्याय 13 जांच और विचारण में दांडिक न्यायालयों का अधिकारिता या क्षेत्राधिकार, इनसे संबंधित प्रावधान 177 से 190 तक में वो दे रखा है। कभी कभी इसके टाइटल और हेडिंग से भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है। अध्याय जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, कार्रवाइयां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें, धारा 190 से 199,
कार्रवाइयां शुरू करने या संज्ञान लेने के लिए अपेक्षित शर्तें जो है पुलिस रिपोर्ट होनी चाहिए या परिवाद होना चाहिए या पुलिस अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति की या स्वयं की जानकारी से वो अपराध बन रहा है ऐसा संतुष्ट हो जाए। तो जो कुछ भी दे रखा है 190 से लेकर और 199 तक स्पेशल प्रोविजन में भी। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका 15 मजिस्ट्रेट से परिवाद, धारा 200 से लेकर और 203 तक के प्रावधान है इसमें। मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई का प्रारंभ किया जाना, यह धारा 204 से 210 तक के प्रावधान है इसमें। अध्याय 17 आरोप से संबंधित है और 2 भागों में विभाजित है। ये आरोप का प्रारूप जो है फॉर्म ऑफ चार्ज, ये 211 से 217 में दे रखा है और जॉइंडर ऑफ चार्जेस, आरोपों का संयोजन जो है ये 218 से 224 में दे रखा है। पूरा जो चैप्टर है ये 211 से लेकर और 224 तक है। नेक्स्ट चैप्टर 18 अध्याय 18 सेशन ट्रायल का है, सेशन विचारण का, सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण 225 से 237 तक। अध्याय जो 19 है मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों का विचारण और यह भी 3 भागों में विभाजित है। पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित जो मामले हैं उनके लिए 238 से 243 में स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखे हैं। पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित जो मामले हैं उनके लिए 244 से 247 में स्पेसिफिक प्रोविजन दे रखे हैं और ये लास्ट पोर्शन कॉमन है दोनों के लिए, विचारण की समाप्ति या टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल 248 से 250। चैप्टर जो 20 है अध्याय 20 ये मजिस्ट्रेट के द्वारा समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया दे रखी है इसमें 251 से लेकर और 259 तक। कई बार इसके सेक्शंस के बंच पूछ लेते हैं, समन ट्रायल का प्रोसीजर जो है वो कौन से सेक्शंस में है, 238 से 250 में, 251 से 259 में, 260 से 265 में। ऐसा प्रीलिम्स या ऑब्जेक्टिव पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। चैप्टर 21 जो है संक्षिप्त विचारण, समरी ट्रायल का प्रोसीजर दे रखा है इसके अंदर 260 से 265। चैप्टर 21A अभिभाग चर्चा या प्ली बार्गेनिंग 265 क से लेकर और 265 ठ तक, 265A से 265L। देन इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव और प्रीलिम्स में। विच चैप्टर ऑफ द CRPC इज कंसर्न टू द प्ली बार्गेनिंग, अभिभाग चर्चा से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा अध्याय है, ऐसा ऑब्जेक्टिव पेपर में या प्रीलिम्स के पेपर में क्वेश्चन आता है। यहां से डायरेक्ट टाइटल से क्वेश्चन आता है। चैप्टर 22 कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी 266 से 271 तक के प्रावधान है। प्रोडक्शन वारंट है वो इश्यू होता है उनको पेश करवाने के लिए। चैप्टर 23 जांच और विचारण में साक्ष्य लिया जाना, इसमें 2 प्रकार के प्रावधान है, साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग जो है वो 272 से 283 में और साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन आदि जारी करना वगैरह जो है ये 284 से 299 तक में। चैप्टर 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री मेंस और इंटरव्यू सभी स्टेजेस के लिए। जांच और विचारण के बारे में साधारण जो उपबंध है जो सभी ट्रायल पे लागू होगा, चाहे वो सेशन ट्रायल है, चाहे वो वारंट ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है, चाहे वो समन ट्रायल है और चाहे वो समरी ट्रायल है, सभी पे है। यदि एक्सप्रेस रूप से एक्सक्लूडेड नहीं है तो ये जो जनरल प्रोविजन है वो सभी प्रकार के ट्रायल पे वो लागू होंगे और ये धारा 300 से लेकर और 327 तक के प्रावधान है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इसके अंदर। 300 इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, 304 लीगल एड वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। अकम्प्लिस को पार्डन देने के जो प्रावधान है 306, 307 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 309 में एडजॉर्नमेंट देने की पावर है, 311 में विटनेस कॉल करने की कोर्ट की पावर है, 313 में बयान मुलजिम है, 315 में अभियुक्त खुद सक्षम साक्षी है प्रतिरक्षा का, 317 में हाजिरी माफी का संबंधित प्रावधान है, 319 में ट्रायल के दौरान जो दोषी प्रतीत हो रहे हैं उनके खिलाफ कॉग्निजेंस लेने की पावर है, 320 में कंपाउंडेबल ऑफ ऑफेंसेज, अपराधों में राजीनामा हो सकता है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। 321 में विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन, अभियोजन को वापस लेने का प्रावधान है। 323 में ड्यूरिंग ट्रायल कमिटल, विचारण के दौरान है वो केस सेशन कोर्ट एटसेट्रा को सुपुर्द है वो हो सकता है। 325 में सबमिट द प्रोसीडिंग टू द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फॉर अवॉर्डिंग द सीवियर पनिशमेंट, कठोर दंड देने के लिए वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को है वो कार्रवाई भेजी जाना। और 327 द प्लेस ऑफ ट्रायल टू बी ओपन कोर्ट, जो विचारण का स्थान है वो खुला न्यायालय होगा एटसेट्रा। ये सारे जो विशेष प्रावधान है वो इस चैप्टर 24 में कवर होते हैं और सब इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने अभी नाम लिए हैं इस क्लास में ये आपके लिए प्री से लेकर इंटरव्यू तक ऑल स्टेजेस के लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 25 कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट टाइटल से कोई क्वेश्चन आ सकता है इससे भी। विकृत चित्त
अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबंध 328 से 339 तक के प्रावधान है इसके अंदर। चैप्टर 26 न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबंध 340 से 352 तक के प्रावधान है, और इसको 195 जो सीआरपीसी का 1B उसके साथ देखना है आपको। इसमें भी कुछ प्रोविजन लाइक 344 एटसेट्रा 345 जो है 340 इटसेल्फ, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देन चैप्टर 27, इसके टाइटल से क्वेश्चन पूछा जाता है, विच चैप्टर ऑफ द सीआरपीसी इज कंसर्न टू द जजमेंट्स, in which chapter of the CRPC the provision deals or concern to the judgments। दंड प्रक्रिया संहिता का निम्न में से कौन सा अध्याय निर्णय से संबंधित है या निर्णय के बारे में प्रावधान है, ऐसा कई बार एक्सेप्शनली पूछ लेते हैं, तो ये आपको याद रखना है। 27 है चैप्टर, और 353 टू 365 प्रोविजन है इसके अंदर। मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए कार्रवाई को प्रस्तुत किया जाना, यह अध्याय 28 में है। जब सेशन कोर्ट और एडिशनल सेशन कोर्ट जो है वो मृत्युदंड देते हैं तो उसमें कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट को कार्रवाई भेजी जाती है। उसका प्रोसीजर इस चैप्टर 28 में दे रखा है, सेक्शन 366 टू 371। इसके चैप्टर के टाइटल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स के पेपर में। विच चैप्टर ऑफ द सीआरपीसी इज कंसर्न टू द अपील, और अपील इज प्रोवाइडेड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ द सीआरपीसी। दंड प्रक्रिया संहिता के किस अध्याय में अपील से संबंधित प्रावधान है, या निम्न में से कौन सा अध्याय अपील से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर में या प्रीलिम्स में आपके सामने आ सकता है। सेक्शन 372 टू 394 ये अपील से रिलेटेड प्रोविजन है। चैप्टर 30, इसके भी टाइटल और हेडिंग से कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जाता है। रेफरेंस एंड रिवीजन, निर्देश और पुनरीक्षण कौन सा चैप्टर है, ऐसा क्वेश्चन है, वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स के पेपर में या ऑब्जेक्टिव में। चैप्टर 30 है, चैप्टर के नंबर भी आपको याद रखने हैं और इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है ये भी याद रखना है आपको। चैप्टर 31, आपराधिक मामलों का एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट को ट्रांसफर जो करने की पावर है, सुप्रीम कोर्ट की ट्रांसफर की पावर, हाई कोर्ट की ट्रांसफर की पावर, सेशन कोर्ट की ट्रांसफर की पावर, एक्सेप्शनली सीजिम वगैरह की विड्रॉल की और रिकॉलिंग की पावर, ये सारा जो है इस चैप्टर 31 के अंदर वो कवर होगा। और धारा 406 से लेकर और 412 तक में इसका डिटेल प्रोविजन दे रखें। चैप्टर 32, दंडादेश का निलंबन, निष्पादन, परिहार और लघुकरण। मृत्यु दंडादेश से रिलेटेड ये 413 से 416 तक के प्रावधान है। कारावास में 417 से 420 तक, जुर्माने के उद्ग्रहण से संबंधित प्रावधान 421 से 424 में है, और निष्पादन के बारे में और जो साधारण जो बंद है ये 425 से 431 में है। और लास्ट जो पोर्शन है इस चैप्टर का, दंडादेश का निलंबन, परिहार, लघुकरण आदि, ये 432 से 435 में, और ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है। और ये जो मृत्युदंड वाले में भी 413 इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है, जुर्माने के उद्ग्रहण में 421 इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अध्याय जो 33, इसके भी टाइटल और हेडिंग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। जमानत और बंद पत्र से संबंधित कौन सा अध्याय है सीआरपीसी का, इस तरीके का फैक्चुअल क्वेश्चन प्रीलिम्स और ऑब्जेक्टिव पेपर जो पिछले सालों के पेपर्स आप देखना तो उसमें मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन आपको रिपीटेडली, यूपी, एमपी, राजस्थान एक्सेट्रा स्टेट्स के अंदर। चैप्टर 33 है ये, और धारा 436 से 450 तक के प्रावधान है इसमें। अध्याय जो 34 है इसका टाइटल संपत्ति का वयन है। वयन का मतलब जो है वो संपत्ति को सौंपा जाना आदि है, या नष्ट करना वगैरह भी है, वो हो सकता है उसके अंदर। धारा 451 से लेकर और 459 तक के प्रावधान है इस चैप्टर में। देन चैप्टर 35, अनियमित कार्रवाइयां, धारा 460 से लेकर और 460 तक के प्रावधान है इसके अंदर। देन अध्याय 36, इसके टाइटल और हेडिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने प्रीलिम्स के पेपर में। कुछ अपराधों का संज्ञान लेने के लिए या संज्ञान करने के लिए परिसीमा, ये कौन सा चैप्टर है सीआरपीसी का इससे संबंधित, ऐसा कोई क्वेश्चन, चैप्टर के नंबर है वो पूछे जा सकते हैं आपसे। सेक्शन 467 टू 473 ये सेक्शंस का बंच है इस चैप्टर 36 में। और लास्ट चैप्टर है आपका अध्याय 37, इसका टाइटल प्रकरण या विविध प्रावधान है, और 474 से लेकर और 484 तक के है वो प्रोविजन इसमें कवर होता है। 482 जो है इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है परीक्षा की दृष्टि से। तो इस तरीके से ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ वो सीआरपीसी है।
दंड प्रक्रिया संहिता का वो वर्गीकरण है कि कैसे किस अध्याय का जो टाइटल और सेक्शंस का बंच और चैप्टर नंबर उसको है वो रिकॉग्नाइज या रिकलेक्ट किया जाए या याद किया जाए, ऐसा चार्ट बना के आप है वो तैयार रखें और बीच बीच में जब भी समय मिले आप लिखें उसको, रफ रजिस्टर में खुद है वो रिपीटेडली उसको बनाएं तो याद भी हो जाएगा। और फ्रेंड्स वगैरह जो साथ में तैयारी करें उनसे डिस्कस भी करें, उनको बताएं भी कि हमने इस तरीके से याद किया, और रैंडम उनसे पूछे भी अचानक जो है वो चैप्टर 17 का टाइटल क्या है, किसी से पूछ लो चैप्टर 23 का है वो टाइटल क्या है, 33 का टाइटल क्या है। ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 ऐसे तो याद हो जाएगा, पर जब तक रैंडम नहीं पूछेंगे तब तक दिमाग पर जोर नहीं आएगा। और लास्ट से भी स्टार्ट करें आप 37 36 35 34 33 वगैरह, इस तरीके से भी वो दिमाग को कसरत करवाएं ताकि जो है वो आपकी और याद रखने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। Yes, now we start the chapter first of the CRPC. Preliminary section 1 to 5. Section 1. Title of the section 1 is short title, extent and commencement of this code, commencement of this act. What is the short title of this code or act? What is the territorial extension of this act or this law, whether it applicable to the whole territory of the India or on a particular states, and what is the date of the commencement of this act. 3 points involved in the section 1 of the criminal procedure code. The short title of this act is the Code of Criminal Procedure 1973. This act may be called, or the short title of this act is the Code of Criminal Procedure 1973. And so far is concerned to the extend to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. Except the state of Jammu and Kashmir, this terminology was omitted by the Jammu Kashmir Reorganization Act 2019. And now that this code is applicable on the whole territory of India subject to the proviso. Whole territory of the India subject to the proviso. What is the proviso? Provided that the provision of the code other than those relating to the chapter 8, chapter 10 and chapter 11 thereof shall not apply to the state of Nagaland and tribal areas and to the tribal areas. What is the meaning of the tribal areas which use under the clause B? That is explained by the explanation. The tribal areas means the territories which immediately before the 21st day of the January 1972 were included in the tribal areas of Assam. Were included in the tribal areas of Assam as referred to in paragraph 20 of the 6th schedule to the constitution, and other than those within the local limits of the municipality of Shillong. It means the tribal areas means the tribal areas of the Assam. But the concerned state government may by notification apply the such provision or the any of the them to the whole or the part of the state of Nagaland or the such tribal areas as the case may be, with such supplemental, incidental or the consequential modification as may be specified in the notification. The provision of the chapter 8, 10 and 11 ipso facto applies on the state of Nagaland and the tribal areas of Assam. But except these 3 chapters, the rest of the provision of CRPC not directly applicable on the state of Nagaland and the tribal areas of Assam. How to apply these provisions? This power is vested in the concerned state government, the state government of Nagaland and the state government of the Assam, which by notification in official gazette may apply the rest of the provision of the CRPC, the all provision and some provision of the CRPC on the whole state of Nagaland and the part of the state of Nagaland and the whole tribal areas of the Assam and certain parts of the tribal areas of the Assam, with some supplemental, consequential
incidental modification or alteration. That this discretionary power vested in the state government of Nagaland and the state government of Assam. And the subsection 3, that is concerned to the date of the commencement of the criminal procedure code, that is important for the prelims paper. So many time asked in the objective paper or the prelims paper, what is the date of the commencement of criminal procedure code 1973? What is the date? First day of the April 1974. 1st April 1974, that was the date of the commencement of the criminal procedure code 1973. हिंदी में आप देखेंगे धारा 1 जो है, अध्याय 1 की पहली धारा, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, 3 बातें हैं इसके अंदर। संक्षिप्त नाम इसका क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता 1973, ये इस अधिनियम या इस संहिता का है वो संक्षिप्त नाम है, शॉर्ट टाइटल है। विस्तार इसका कहां तक है? जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। ये जो जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय शब्दावली थी, इस शब्दावली को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा लोपित कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। तो अब इसका प्रभाव क्या है, इसको हटाकर आपको देखना है कि इस दंड प्रक्रिया संहिता का विस्तार संपूर्ण भारत पर है, परंतु के अधीन रहते हुए प्रोविजो के सब्जेक्ट जम्मू कश्मीर वाली सीमा तक तो ओमिटेड है, बट ये भी अभी भी एग्जिस्ट करता है। परंतु इस संहिता के जो अध्याय 8 है, अध्याय 10 है और अध्याय 11, अध्याय 8 का मीन कीपिंग पीस और मेंटेनिंग गुड बिहेवियर, और अध्याय जो 10 है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और पब्लिक पीस एटसेट्रा, और अध्याय जो 11 है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस, परिशांति बनाए रखना और सदाचार बनाए रखने के लिए प्रतिभूति लेने की जो शक्ति है वो अध्याय 8 में है, और लोक प्रशांति है वो बनाए रखना आदि जो है ये अध्याय 10 में है, और पुलिस की निवारक शक्तियां ये अध्याय 11 में। ये 3 चैप्टर डायरेक्ट लागू होते हैं नागालैंड राज्य में भी और असम के जनजाति क्षेत्रों में भी। इन 3 अध्यायों के अलावा जो है भिन्न जो प्रावधान है सीआरपीसी के, वो डायरेक्ट नागालैंड राज्य में लागू नहीं होते हैं और असम के जनजाति क्षेत्र में भी लागू नहीं होते हैं। इन अध्यायों से भिन्न जो है नागालैंड राज्य को और जनजाति क्षेत्र को लागू नहीं होंगे। ये चैप्टर तो डायरेक्ट लागू होंगे 3 चैप्टर सीआरपीसी के, बट इसके अलावा जो 34 अध्याय है वो लागू न तो नागालैंड राज्य पे लागू होते हैं और न असम के जनजाति क्षेत्र पे लागू होते हैं। कैसे लागू हो सकते हैं उसका तरीका भी बता रखा है इस अगले परंतुक में या किंतु के बाद। संबंधित राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के ऐसे उपबंध और उनमें से किसी को भी संपूर्ण नागालैंड राज्य या संपूर्ण जो असम के जनजाति क्षेत्र है या उनके किसी भाग पर है कुछ अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उपांतरण या परिवर्तन के साथ है वो लागू कर सकती है, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए। नागालैंड राज्य की जो राज्य सरकार है उसको और असम की जो राज्य सरकार है उनके पास पावर है कि वो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा जो सीआरपीसी के 34 अध्यायों के शेष प्रावधान है उनको लागू कर सकती है। संपूर्ण नागालैंड राज्य में लागू कर सकती है, नागालैंड के कुछ भाग में लागू कर सकती है, संपूर्ण जो असम के जनजाति क्षेत्र है उनमें लागू कर सकती है, या असम के जनजाति क्षेत्रों के कुछ भाग में लागू कर सकती है। जिन अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिणामिक उन परिवर्तनों के मॉडिफिकेशन के साथ है वो लागू किए जा सकते हैं। जनजाति क्षेत्र जो परंतु के अंदर क्लॉज बी में वर्ड यूज लिया गया, क्या मतलब है जनजाति क्षेत्र? क्या भारत का हर जनजाति क्षेत्र इसमें शामिल होगा? नहीं, स्पेसिफिक है ये। जनजाति क्षेत्र से वे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जो 1972 की जनवरी के 21वें दिन से ठीक पहले संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में यथा निर्दिष्ट असम के जनजाति क्षेत्र के रूप में शामिल थे। संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 के अंदर 21 जनवरी 1972 से ठीक पहले असम के जनजाति क्षेत्र के रूप में जो राज्य क्षेत्र शामिल थे वो है वो जनजाति क्षेत्र होगा इस क्लॉज बी के पर्पज के लिए परंतुक में। और उसमें भी जो शिलांग नगरपालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर जो जनजाति क्षेत्र है वो इसमें शामिल नहीं होंगे। उनसे जो भिन्न जो क्षेत्र होंगे वो है वो इस जनजाति क्षेत्र शब्दावली का है वो अर्थ होगा। केवल असम के जनजाति क्षेत्र है, न कि मेघालय, त्रिपुरा और अन्य जो किसी शेड्यूल में दे रखे हैं सभी राज्यों के नहीं है, ओनली असम के। और उसमें से भी ये जो शिलांग नगरपालिका क्षेत्र के भीतर कोई यदि जनजाति क्षेत्र है वो स्थित है वो भी है वो इंक्लूड नहीं होगा। और इस दंड प्रक्रिया संहिता के प्रवर्तन की तारीख क्या है?
लागू होने की तारीख क्या है, किस तारीख से लागू हुआ, कौन सी तारीख से प्रवर्तन में आया, ये रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीलिम्स के पेपर में या ऑब्जेक्टिव पेपर में। 1 अप्रैल 1974 का अप्रैल का पहला दिन, 1 अप्रैल 1974 जो है, इस तारीख से ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 है वो लागू हुई या प्रवर्तन में आई। सेक्शन 2 है डेफिनेशंस, परिभाषाओं से रिलेटेड है। एवरी स्टेट्यूट में या एक्ट में आप देखेंगे सर्टेन टिपिकल जो टर्मिनोलॉजीज है उनको लेजिस्लेचर ने डिफाइन कर रखा है। कुछ जो शब्दावलियां हैं, कठिन शब्दावलियां जो बार बार सेक्शंस में, आर्टिकल्स में, ऑर्डर्स में, रूल्स में यूज ली जाती है, तो उनको विधायिका जो है वो परिभाषित करती है। वो शुरू के जो सेक्शंस होते हैं उनके अंदर किसी में से, किसी सेक्शन 2 में, किसी में सेक्शन 3 में आपको मिल सकती है, एक्सेप्शनली सेक्शन 4, सेक्शन 5 में भी डेफिनेशन मिल सकती है आपको। तो उस डेफिनेशंस के अंदर जो है वो कुछ टर्मिनोलॉजी डिफाइन है। सिमिलरली इस सेक्शन 2 के अंदर सीआरपीसी में भी जो है 2A से 2Y तक, 2A से लेके और 2Y तक सर्टेन टर्मिनोलॉजी है उनको डिफाइन कर रखा है, परिभाषित है वो कर रखा है। इसको अपन नेक्स्ट जो अपनी क्लास है, कल की क्लास, उसमें वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सारी परिभाषाएं अभी हो भी नहीं पाएगी और एक दो डिस्कस भी कर लेंगे तो काफ़ी है, वो टाइम हो चुका है। आज पहली क्लास है वो इंट्रोडक्टरी ही क्लास थी, बहुत ज़्यादा पहली क्लास में इतना सीरियस कर देंगे स्टूडेंट्स को तो थोड़ा सा मुश्किल सा है वो लगेगा। तो शुरू में थोड़ा इजी रखना है वो आवश्यक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, इजी से टफ की तरफ बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे रिदम बैठ जाएगा, आप लोगों को याद होना शुरू हो जाएगा, तब अपन स्पीड पकड़ना है वो स्टार्ट कर लेंगे। सर ये एनफोर्समेंट डेट और कमेंसमेंट एक ही होती है? हाँ हाँ।